हमेशा से ये डिबेट रही है ओवर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हिप हॉप. स्टिल देयर आर 4 elements which are considered to be its column, to be its pillar. So hey guys, welcome to hiphoptv.in, the channel that is purely dedicated to hip hop, especially desi hip hop. Complex culture और hip hop comprising of 4 elements. First is DJing, जिसको हम turntabling भी कहते हैं. Second one is rapping, also known as MCing or rhyming. Third is graffiti painting or gaff, and the fourth one is b-boying. So basically hip hop की origin एक African American city में हुई थी जिसका नाम है Bronx, which is situated in न्यूयॉर्क इन द लेट 1970s. और ये ब्रॉन्क्स का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया था, मतलब यहाँ पर बहुत ही गरीबी थी उस टाइम. तो यार हिप हॉप जो है वो बनाया ही इसलिए गया था ताकि बंदे अपनी हार्ड लाइफ, हार्ड वर्क डिपिक्ट कर सकें, जता सकें. द प्रॉब्लम विच दे आर फेसिंग ड्यू टू बैड इकोनॉमिकल हेल्थ एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविल्स दैट आर डिग्रेडिंग द सोसाइटी. As hip hop defines, hip means knowledge, hop means movement. And by combining the words hip hop, the meaning comes out to be movement through knowledge. अगर आपको knowledge है तो उसको इस्तेमाल करो. For example, suppose कि जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में फीमेल्स को मेल्स के कंपैरिजन में रिस्पेक्ट नहीं मिलती और फीमेल्स को उतना प्रोडक्टिव नहीं समझा जाता जितना मेल्स को समझा जाता है, और उनको हमेशा यही बोला जाता है कि वो सिर्फ घर के काम करने लायक ही है. सो नाउ आप भी उसी सोसाइटी का पार्ट हो, एज आई टोल्ड इट बिफोर, बट आपके व्यूज़, आपकी मान्यता अलग है. आप ऐसा नहीं समझते कि फीमेल्स आर वीक, यू सपोर्ट फेमिनिज्म. ओके, अब use your knowledge and your views and aware your society about what you think. Is it right or is it wrong? That's what hip hop tells us or defines us, that if you have some knowledge, then make it a movement, don't waste it. अब बात ये आती है कि कौन मानेगा आपके व्यूज, क्योंकि एक आप ही हो जो अलग सोच रहा है. इट डजेंट मैटर कि आप क्या सोचते हो, हर किसी के पास अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता ही होता है. You must be strong enough to deliver your thoughts and views to the people, to the society, जिससे वो एक स्पार्क तो दे सके, और क्या पता वो स्पार्क, वो चिंगारी आग लगाने लायक हो. Let's talk about this topic more as it is too hot to explain. तो हिप हॉप कम्युनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर मानी जाती है in educating their listeners, in educating the people about HIV AIDS. जिसको ये नहीं पता कि HIV AIDS क्या है, तो HIV causes AIDS and interference with the body's ability to fight infections. The virus can be transmitted through contact with infected blood, semen or vaginal fluids. One of the biggest artists of early hip hop scene, Eazy-E, a member of NWA, Niggas with Attitude, had died due to AIDS in 1995. और तब से ही जितने भी आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स, कोरियोग्राफर्स थे उन्होंने अवेयरनेस फैलानी स्टार्ट कर दी about the disease and its impact in the hip hop society. Songs like Let's Talk About AIDS by Salt and Pepper, etc. were launched in order to provide a movement in the hip hop culture. I hope कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ आ गया हो. So let's move to our topic, elements of hip hop. Graffiti and breakdancing, the aspects of the culture that first caught public attention, had the least lasting effect. ग्राफिटी मूवमेंट 1972 के आसपास स्टार्ट हुई थी बाय अ ग्रीक अमेरिकन जिसने साइन किया था
ताकी 183, जिसमें ताकी उसका नाम था और 183 उसकी स्ट्रीट ऑन द वॉल्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। तब से जितने भी यूथ थे ब्रॉन्क्स, क्वीन और ब्रुकलिन के, उन्होंने कुछ ना कुछ वॉल्स पे लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे अपना नाम या फिर कोई भी मूवी या फिर कॉमिक का सीन बाय द स्प्रे पेंट्स। और बहुत ही जल्द जो आर्ट डीलर्स होते थे डिफरेंट कंट्रीज के, उन्होंने भी ग्राफिटी को डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया आर्ट गैलरीज में। But the walls on which this graffiti painting made were belongs to government authority, obviously. तो उन्होंने भी कुछ प्रिवेंशंस लेने स्टार्ट कर दिए इसको कम करने के लिए, like undercover police squads with dogs and wire fencing, paint removing acids and etc. Some of the graffiti artists in India are Kamlesh Sadarani, Moose Graffiti, NME, Zack, etc. Just support them guys, and I will give some of the links to their video so that you can find them out and support them please. Dancing, rapping और DJing, इन सब की बिगनिंग या फिर बोलें ओरिजिन लगभग एक साथ ही हुई थी, क्योंकि वो कुछ एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट हुआ था कि एक आर्ट दूसरे आर्ट को कॉम्प्लीमेंट देने लगी। DJ Kool Herc, जिनका रियल नेम है क्लाइव कैम्पवेल, was widely credited as the father of modern rapping and was the first major hip-hop DJ who was an immigrant introduced huge sound system of his Jamaican city. He melded percussive fragments from the older records with some popular songs to create a continuous flow of music. Competitions, contest बढ़ने लगे और उस टाइम के जितने भी बेस्ट डांसर्स थे उन्होंने ब्रेक डांसिंग डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। डांसिंग में यूज ऑफ एक्रोबैट्स एंड सम ऑफ द एयरबोर्न मूव्स मेड अ न्यू स्टाइल ऑफ डांस कॉल्ड बी-बॉइंग। और जितना बड़ा हाथ डीजे कूल का है इन डेवलपिंग दीज एलिमेंट्स, उतना ही बड़ा हाथ है ग्रैंड मास्टर फ्लैश और ग्रैंड विजार्ड का। डीजेस डेवलप अ न्यू टेक्निक फॉर टर्न टेबल मैनिपुलेशन, जैसे निडल ड्रॉपिंग जो कि ग्रैंड मास्टर फ्लैश ने क्रिएट किया था, और स्लाइडिंग द रिकॉर्ड बैक एंड फोर्थ अंडरनीथ द निडल क्रिएटेड द रिदमिक इफेक्ट कॉल्ड स्क्रैचिंग। नाउ रैपिंग। रैप को भी एक नेशनल प्रोमिनेंस तब मिला जब 1979 में शुगर हिल गैंग नामक हिप हॉप ग्रुप ने अपना गाना निकाला जिसका नाम था रैपर्स डिलाइट, जो कि एक इंडिपेंडेंटली ओन्ड लेबल शुगर हिल पे रिलीज हुआ था। और कुछ ही हफ्तों में वो एक न्यू स्पार्क, एक न्यू फिनोमिनन बनने लग गया पॉप म्यूजिक के लिए। एंड सम ऑफ द मेजर पायनियर्स ऑफ रैपिंग are Grandmaster Flash and Furious 5, Kurtis Blow and the Cold Crush Brothers. These early MCs and DJs constituted rap's old school. 1985 के आसपास रैप म्यूजिक राइमिंग ने पॉपुलैरिटी गेन करना स्टार्ट कर दिया। So this is all about this video guys. Thank you for watching once again, and please like if you find it informative, and don't forget to subscribe our channel for more compilations and video like this, and comment down below who is your favorite rapper and what you like the most in hip hop culture. Thank you for watching once again.